Good afternoon, dear students. Myself is Megha Parashar from SIRSEP, and now we are discussed about BCS classification. BCS classification means the biopharmaceutical classification system is a system to differentiate the drug on the basis of their solubility, permeability, and a rate of dissolution. This system restricts the prediction using the parameters solubility and intestinal permeability. The biopharmaceutical classification system is an experimental model that measures permeability and solubility under prescribed conditions. The original purpose of the system was to aid in the regulations of the post-approval changes and generics providing approvals. And now we are introduced BCS classifications, route of choice for the formulator, and continues to dominate the area of drug delivery technologies. So, biopharmaceutical classification system is scientific framework for classifying drug substance based on their aqueous solubility and intestinal permeability, established by Gardner Amidon et al. And BCS has gained importance worldwide as a drug product regulation tools for scale up and post approval changes. The aim of the BCS is to provide a regulatory tools for the replacement of certain these studies by conducting accurate in vitro dissolution tests. The concept of the BCS classification, drug is any substance that is capable of altering physiological activity. Biopharmaceuticals, biopharmaceutics is the study of physical and chemical properties of a drug and their proper doses relating onset, duration, and integrity of a drug. BCS, they are on the basis of solubility, permeability, and rate of dissolution. So, जो solubility is the ability of a drug to be solution after dissolution. Means कि जो drug है उसकी solubility depend करती है after dissolution के बाद में जो solution form बनता है उसको हम solubility कहते हैं. Permeability of the drug to passes the biological membrane which is lipophilic. Means कि जो lipophilic drug है उनकी permeability जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वो biological membrane जो होती है उसको ज्यादा अच्छे से परमीबल होती है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. इसमें अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम बना है ये फैटी लेयर ऑफ स्टमक वॉल है और ये वाटर है, ये स्टमक है. इसके अंदर हम ये ब्लड वेसल्स हैं. तो जब हम ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर डिसोल्यूशन होता है, फिर हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, परमेबिलिटी चेक करते हैं, फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है उसका ये हम देखते हैं. तो ड्रग डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है ऑफ ड्रग का वो सबसे पहले इन ऑरल डोसेस फॉर्म में ये ड्रग है, जैसे कि फॉर्मुलेटेड ड्रग जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है वो है. फिर डिसइंटीग्रेशन मतलब कि वो बाइक पार्टिकल्स में जो डिसइंटीग्रेट होकर हमें मिल रही है. इसके बाद में डिसोल्यूशन फॉर्म, डिसोल्यूशन देखते हैं हम उसका. इसके बाद सॉल्युबलाइज्ड कितनी हुई है, कितना नंबर ऑफ परसेंट जो ड्रग है वो सॉल्युबलाइज्ड है. इसके बाद हम उसकी परमेबिलिटी देखते हैं अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. फिर उसका एब्जॉर्बेंस कैसा है वो देखते हैं. इसके बेस्ड पर हम ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं ऑन 4 कैटेगरीज में. अगर हम KDD की बात करें तो KDD मीन्स क्या होता है, नॉलेज डिस्कवर इन डाटाबेसेस में, और KID मतलब इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है, और KP मीन्स परमेबिलिटी. ठीक है, ये जो है वो कांस्टेंट है. इसके बाद अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एक्वस सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्वेंट मींस वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स जो होते हैं उसके अंदर, और पार्टीशन कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो फैटी सॉल्वेंट्स वाटर इमिसिबल मतलब वाटर के अंदर जो मिसिबल नहीं है, जैसे कि फैटी सॉल्वेंट्स में है. तो लाइपोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं वो लीस्ट सॉल्युबल है
एंड हाइड्रोफिलिक जो है ड्रग्स जो है वो मोर सॉल्युबल। लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती है वो मोर परमीबल होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। और हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है वो मोर सॉल्युबल है लेकिन लेस परमीबल है, तो परमेबिलिटी उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो permeability of a drugs जो होता है molecules passes the biological membrane by active transport and passive transport. In passive transport simple diffusion method से और osmosis pore transport। अगर हम carrier mediated facilitated diffusion देखें या vesicular transport देखें तो उसमें phagocytosis और pinocytosis, मतलब passive diffusion of water soluble drug अगर हम देख रहे हैं थ्रू एन इक्वस चैनल और पोर के थ्रू, तो हम ये देख रहे हैं पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग एंड पैसिव डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग। तो इसमें देखते हो आपकी जो कैरियर है हम मेडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग भी देख रहे हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो डिफ्यूजन ऑफ अ ड्रग एंड ड्रग की परमेबिलिटी किस तरीके से है। तो अगर हम वाटर सॉल्युबल ड्रग की परमेबिलिटी की बात करें और देखें, आपने देखा होगा कि इसकी परमेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात करें तो इसकी परमेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब बेस्ट है इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्युबल ड्रग। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द in vitro dissolution characteristics and in vivo absorption performance of immediate release IR products, to evaluate the feasible and appropriateness of an extension of a behavior concepts। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देखिए VCS क्लासिफिकेशन जो 4 क्लासेस में होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। क्लास फर्स्ट में जो ड्रग रखते हैं हम वो कौन सी होती है, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही हाई होती है और परमेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत हाई होती है। अगर हम बात करें क्लास सेकंड ड्रग की तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। अगर हम क्लास थर्ड की बात करें तो जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और परमेबिलिटी लो होती है। अगर हम क्लास 4 की बात करें तो जिसकी सॉल्युबिलिटी लो है लेकिन परमेबिलिटी हाई है। तो इस तरीके से हम जो ग्राफ है वो तैयार करेंगे सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पे। अगर परमेबिलिटी के बेसिस पे देखें तो हम 1 × 10⁶ सेंटीमीटर है, इससे डिनोट करेंगे। वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है डिसॉल्व द हाईएस्ट डोज के लिए कितनी वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड है, उसके बेस पे हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे। अगर हाई परमेबिलिटी और लो परमेबिलिटी का इस तरीके से चार्ट देखें तो हमने यहाँ पर हाई परमेबिलिटी में क्लास 1 और 2 ड्रग रखे हैं और 3 और 4 क्लास 3 और 4 ड्रग जो हैं वो लो परमेबिलिटी में रखे हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ हाई सॉल्युबिलिटी है और यहाँ लो सॉल्युबिलिटी है। तो हाई सॉल्युबिलिटी में क्लास 1 और 3 आ जाते हैं और लो सॉल्युबिलिटी जो होती है उसमें क्लास 2 और 4 ड्रग आ जाते हैं। इस तरीके से हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। इसके बाद BCS का जो हमने सॉल्युबिलिटी ग्राफ देखा ये इस टाइप से है, परमेबिलिटी का देख रहे हैं और सॉल्युबिलिटी का। तो अगर हम परमेबिलिटी की फर्स्ट की बात करें तो जो ग्राफ है वो लो सॉल्युबिलिटी है और धीरे धीरे हाई ब्रॉड होता जा रहा है ये परमेबिलिटी। तो जहां ज्यादा परमेबिलिटी है वो क्लास फर्स्ट और सेकंड की ड्रग है जिनकी परमेबिलिटी हाई होती है, और क्लास फोर्थ और थर्ड ड्रग है जिनको हमने क्लास थर्ड और फोर्थ में रखा हुआ है। वो ड्रग ऐसे हैं जिनकी परमेबिलिटी बहुत ही कम होती है, लो होती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्लास सेकंड और फोर्थ की जो ड्रग है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है, और अगर ऐसे सॉल्युबिलिटी हम देखें तो क्लास फर्स्ट और थर्ड की जो है वो सॉल्युबिलिटी बहुत ही हाई है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। जो क्लास फर्स्ट ड्रग होते हैं वो ड्रग डिसॉल्व रैपिडली, जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। रैपिड थेरेप्टिक एक्शन, अगर डिसॉल्व रैपिडली हो रहे हैं, एब्जॉर्ब रैपिडली हो रहे हैं, उनकी परमेबिलिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली बात है उनका थेरेमेटिक एक्शन भी बहुत अच्छा होगा। एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज होंगी उनकी, और ये आइडियल फॉर ओरल रूट के लिए होंगी। मतलब ऐसी ड्रग्स हैं जो ओरल रूट पे देने के बाद भी उनकी परमेबिलिटी और एब्जॉर्बेंस जो होगा बहुत ही ग्रेट होता है। मेटोप्रोल जो है इसका एक एग्जांपल है।
अगर क्लास सेकेंड की बात अगर हम करें तो ड्रग डिसॉल्व स्लोली, इसमें ड्रग डिसॉल्व स्लोली होती है लेकिन ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली होती है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंट्रोल रिलीज ड्रग्स जो हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इसमें, जैसे कि ओरल ड्रग या फिर ओरल रूट या आईवी रूट के थ्रू भी हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारा ग्राफ डायग्राम बना हुआ है ये डिसइंटीग्रेशन को दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि कंप्लीट टैबलेट है ये, तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में मिल रही है हमें अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हम डिसइंटीग्रेशन टाइम के हिसाब से देखेंगे कितने टाइम में कितनी डिसइंटीग्रेट हो रही है, और ये वेरी करती है बाय कंपाउंड एंड प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग कंपाउंड और अलग अलग प्रोडक्ट का डिसइंटीग्रेशन टाइम भी अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें कि ग्लाइबेन क्लेमाइड जो है वो या फिर ग्लाइबुराइड भी हम जिसे बोलते हैं, जो डायबिटीज टाइप 2 के लिए हम यूज करते हैं। ये ग्लाइबुराइड जो है क्लास 2 का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको ओरल दिया जाता है, और एजेटिमाइड जो है वो भी इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन ब्लॉकर है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है, जिसको हम यूज करते हैं क्लास सेकेंड ड्रग में इन ओरल डोसेस फॉर्म में। इसके बाद हम क्लास 3 की बात करें तो क्लास 3 की जो ड्रग्स होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं रैपिडली, एब्जॉर्बेंस जो होता है लिमिटेड होता है, इनकम्प्लीट वायबिलिटी होती है, ओरल एंड आईवी रूट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एग्जांपल के लिए सिमेटिडीन इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्लास 4 ड्रग की, तो लो डिसोल्यूशन रेट होता है, लो परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो क्लास 4 ड्रग का बहुत ही कम होता है, परमेबिलिटी जो होती है वो भी बहुत कम है, स्लो और लो थेरेपेटिक एक्शन है। जब डिसोल्यूशन और परमेबिलिटी बहुत कम है तो थेरेपेटिक एक्शन ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही कम होगा, तो इसको हम आईवी रूट और अदर रूट्स के द्वारा हम प्रेफर करते हैं। और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो है इसका एग्जांपल है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू भी हम क्लास 4 ड्रग्स जो है उनको दे सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनका क्लासिफिकेशन ऑफ अ ड्रग्स डिपेंड्स अपॉन इट्स 3 की पैरामीटर्स, जो 3 की पैरामीटर्स हैं इस क्लासिफिकेशन के, वो ये हैं कि सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी, द कंट्रोल ऑफ दैट कंट्रोल एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। ये कोरिलेट किससे करते हैं, विद 3 रिस्पेक्टिव डायमेंशनलेस पैरामीटर। वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, डोज नंबर, डिसोल्यूशन नंबर और एब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन है या फिर जो ये ड्रग का हमने बीसीएस क्लासिफिकेशन बनाया है उसके 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी। वो जो है वो कोरिलेट किससे करता है, डोज नंबर से, डिसोल्यूशन नंबर से और एब्जॉर्प्शन नंबर से। इसको हम ऐसे निकालते हैं कि डोज नंबर जो है अ फंक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस, इट इज द डोज कंसंट्रेशन एंड अपॉन में सॉल्युबिलिटी रेशियो आ जाएगा। तो मतलब क्या, डोज का जितना कंसंट्रेशन है अपॉन सॉल्युबिलिटी रेशियो, कितना है सॉल्युबिलिटी रेशियो वो, तो कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्युबिलिटी से हम इस तरीके से फॉर्मूले में हाईएस्ट डोज अपॉन बी जो है वो वाटर का वॉल्यूम है, डी जीरो जो है जिससे हम डोज नंबर निकाल रहे हैं, ये शुड बी लेस देन 1 होता है। ठीक है, ऐसे हम डोज नंबर निकालते हैं। देन नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन नंबर। डिसोल्यूशन नंबर की अगर हम बात करें, अ फंक्शन ऑफ ड्रग रिलीज फॉर फॉर्मुलेशन में डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मीन रेसिडेंस टाइम टू मीन डिसोल्यूशन टाइम। मीन रेसिडेंस टाइम मतलब जीआई ट्रैक में वो जितनी देर तक रेसिडेंस कर रही है ड्रग, वो टू डिसोल्यूशन टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसकी डिसोल्यूशन में, उससे हम डिनोट करेंगे। द रेसिडेंस टाइम इन जीआई अप्रॉक्स 180 मिनट्स होता है, और जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिसोल्यूशन के लिए जितना टाइम चाहिए है वो टीसीडी से हम डिनोट करते हैं, मतलब कंप्लीट डिसोल्यूशन, पूरा डिसोल्यूशन होने में जितना भी टाइम लग रहा है वो, तो ये शुड बी एक्सीड 1। देन एब्जॉर्प्शन नंबर की बात करें हम, तो द फंक्शन ऑफ जीआई परमेबिलिटी टू ड्रग सब्सटेंस, तो एब्जॉर्प्शन नंबर जो है कैसे निकालेंगे हम, एब्जॉर्प्शन नंबर मतलब एएन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द एडमिनिस्टर्ड डोज, मतलब जो ड्रग हमने दी है, जो डोज हमने दिया हुआ है उसको एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द मीन रेसिडेंस टाइम, मतलब उसको एब्जॉर्ब होने में जितना टाइम लग रहा है ए एन को,
वो कैसे निकालेंगे AN को, तो मीन रेसिडेंस टाइम मतलब जितना देर वो GI में रह रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, मीन रेसिडेंस टाइम टू मीन एब्जॉर्प्शन टाइम से निकालेंगे, मतलब TGI अपॉन TABS, मतलब मीन रेसिडेंस टाइम अपॉन एब्जॉर्प्शन टाइम से हम क्या निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन नंबर। इसके बाद हम परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन की बात अगर करें हम, तो इन सिटू रेट इंटेस्टाइनल परफ्यूजन मेथड के थ्रू मेल विस्टा रेट से हम निकालेंगे, जिसका सीजनल सेगमेंट जो होता है लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, परफ्यूजन फ्लो रेट 0.1 ml पर मिनट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का भी मेजरमेंट करेंगे हम, और इन्फ्यूजन सीरीज पंप जो है वो इसमें पंप सिस्टम जो है वो हम यूज करते हैं, फिर ड्रग का सॉल्यूशन लेते हैं, देन सैंपल कलेक्ट करके हम परमेबिलिटी ऑफ अ ड्रग चेक की जाती है। डिसोल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो डिसो से इस तरीके से हम निकालते हैं, एंड सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन जो है वो डिसइंटीग्रेशन के बाद हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। एंड इसकी कुछ क्लास बाउंड्रीज होती हैं BCS क्लासिफिकेशन की, कि कैसे आप हाई सॉल्युबल ड्रग बता रहे हैं या हाई परमेबल ड्रग या रैपिडली डिसॉल्विंग ड्रग, तो वो कैसे होती है कि हाई सॉल्युबल ड्रग द हाईएस्ट डोज स्ट्रेंथ शुड बी सॉल्युबल लेस देन 250 ml वाटर, मतलब लेस देन 250 ml वाटर हमें चाहिए है, जिसे हम हाईली सॉल्युबल ड्रग कहेंगे, और जिसका pH रेंज कितना होगा 1 to 7.5। द वॉल्यूम एस्टिमेट अ ग्लास फुल, मतलब एक ग्लास फुल है या फिर 8 आउंस के अप्रॉक्स हम उसे डिनोट करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, जो ड्रग लेस देन 250 ml वाटर में टोटली सॉल्युबल है और जिसकी pH रेंज क्या है, स्ट्रेंथ जो है और रेंज कितनी है 1 to 7.5, तो जैसे हम 8 आउंस के लगभग कहेंगे, उसको हम हाईली सॉल्युबल ड्रग कहेंगे। हाईली परमेबल ड्रग मतलब व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन is determined to be a greater than 90% of an administered dose, मतलब जितना आपने डोज दिया है, जितना डोज आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है उसका ग्रेटर देन 90%, मतलब 90% से ज्यादा होना चाहिए, है ना एब्जॉर्प्शन, उसको हम बोलेंगे हाईली परमेबल ड्रग। अगर रेपिडली डिसॉल्विंग ड्रग की बात करें तो हम व्हेन ग्रेटर देन 85% of the labeled amount of a drug substance dissolved within 30 minutes, मतलब मोर देन 85% जो अमाउंट आपने दिया है ड्रग का वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए विद इन 30 मिनट्स के अंदर, यूजिंग USB ऑपरेटर्स फर्स्ट और सेकंड इन अ वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर देन लेस देन 900 ml बफर सॉल्यूशन, लेस देन 900 ml बफर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो रैपिडली डिसॉल्विंग का मतलब है 85% से ज्यादा आपको लेबल्ड अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होना चाहिए विद इन 30 मिनट्स के अंदर, जो USB ऑपरेटर्स है इन अ वॉल्यूम ऑफ लेस देन 900 ml और बफर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। के बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमने हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी की ड्रग जो है उनको क्लासिफाइड किया है उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग, क्लास फर्स्ट और ये क्लास सेकंड, इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं के नाम है जो क्लास फर्स्ट और सेकंड में आती हैं और अकॉर्डिंग टू उनकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।